Well, live visuals there coming. The BJP President JP Nadda there, all set to play floral tributes on Kargil Divas Day. बिल्कुल ये सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हमारे देश के वीर जवानों को याद कर रहे हैं। ये जी Kargil Vijay Divas, a symbol of India's proud valor and steadfast leadership, celebrated on the 26th of July every year in honor of the Kargil war heroes. This day commemorates the success of Operation Vijay, which was launched by the Indian Army to recapture the Indian territories captured by the Pakistani intruders in the Kargil Dras sector in 1999. बिल्कुल ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ा धोखा भारत को दिया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ शांति की काफ़ी कोशिशें की थीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की कारगुजारियों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा, और उसी दिन को आज याद कर रहा है पूरा देश। तो इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय से, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के दूसरे नेता कारगिल के वीर जवानों को याद कर रहे हैं। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि वहां पर अर्पित की जा रही है। Well, countless stories of valor and selfless sacrifices of our defense forces during the Kargil war are awe-inspiring. We always remain indebted to their service to the nation. अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का है, जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये दिन समर्पित है उन्हें, जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान किया है। अब मैं खुद आप सबके बिहाफ पे, जो हमारे एक सर्विसमैन है दिल्ली में एनसीटी में, उनके बिहाफ पे पुष्पांजलि अर्पित करूँगा। Distinguished dignitaries on the dais and off the dais, Shri J.P. Nadda, Honorable National President, Bharatiya Janata Party, Shri Arun Singh, National Secretary, President, Justice Mr. D.K. Kumari, रख दो माइक रख दो ना, निकाल दिया था। Our chief guest, Shri J.P. Nadda, Honorable National President, President of the largest political party in the world. We are extremely grateful to you, sir, for your kindly accepting our request at a very short notice and to be with us to grace the occasion and do the margdarshan for us. We extend a very warm welcome on the dais. Of course, on the dais, I have to say something about Shri Arun Singh ji, a multifaceted personality and academically very well off. He is a chartered accountant also,
And then, of course, the great war veteran, Lieutenant General V.K. Chaturvedi, Param Vishesh Seva, Seva Medal, Ati Vishesh Seva Medal, and Sena Medal guarantee which he got in 1971 war. He is also Senior Vice President of Akhil Bharati Purv Sainik Seva Parishad. We are very glad to have him. We heartily welcome National General Secretary Shri B.L. Santosh ji. As I said, he is a technocrat and holding a BA instrumental degree, but for last 3 decades, he has devoted his life for the service of society and has been strengthening the party since his, you can say, youth. We welcome veteran Lieutenant General Kohli, again, PVSM, AVSM, BSM, and Shri Amish Malviya ji here, IT head, Shri Sanjay Mayok ji, and our Margdarshak here, Sushri Saroj Pandey, General Secretary, Shri Vijay Shonkar Shastri ji, National Spokesperson, Shri Tarun Chok, National Secretary, Shri Sunil Deodhar, National Secretary, and Shri Mahesh Giri ji, National Secretary. Most welcome, sir. It is a great pleasure to have you all here for this momentous occasion and, of course, the historic occasion too. I may also tell you that the large number of ex-servicemen were very keen to come and they requested us. But we had to regret because of the social distancing and the number limitation, which is say 40 or so, which has been given to us. They are good wishes with us, and we told them as and when occasion arises, we will definitely call you. Once again, I welcome and express heartfelt thanks to each one of you for sparing your valuable time, and that too in the presence of COVID-19 pandemic crisis with all the local problems. I understand there was a lockdown between the borders of Noida and here, and people had difficulty in coming in. Many people could not come from it. This is a special solemn occasion of 21st Kargil Divas. Why we are here today? Gentlemen, on 26 July 1990, on this day, 21 years ago, the Indian Armed Forces recaptured all the Indian forward posts which Pakistan had surreptitiously occupied. The battle was not easy. It lasted for more than 2.5 months. We lost about 527 soldiers and many battle casualties were there. But our determination was there to take away all this and throw away the Pakistan and make example out of this. The Kargil war, some people call it the Kargil conflict, that was fought between May 3rd to 26 July in the district of Kashmir and elsewhere along the LOC. The Battle of Kargil has no parallel. It was fought in the most inhospitable terrain, where the heights were between 14,000 to 16,000 feet and the temperature during winter falls to -40. The survival is impossible. And there the soldiers are day and night, they are sitting there and fighting, and 24 hours they stand watching the enemy. So it is a battle for self-survival also. But there, the enemy is sitting at the peak with all the guns firing on him, the people crawled. And they captured the peaks one by one. The Battle of Tololing, the battle point so and so. I am not enumerating because the time is constraint, otherwise I would have described the battle, and it is a really रोंगटे खड़े हो जाते हैं इसको बोलते हैं. Well, probably only to compare the Battle of Balaklava fought in 1854 in Crimean War sector, which is called the Charge of the Light Brigade, and another battle which mainly Indian soldiers fought in Israel was Battle of Haifa. These are the two comparisons of this battle. The Indian Armed Forces fought and won the war after paying very heavy price, which I said. Since the Indian Armed Forces scored victory over Pakistan by recapturing the post, which at one stage people thought it would be impossible and we may surrender some territory, but they made it possible, and war ended on 26 July. On our terms, they withdrew,
and that is why it is observed as Kargil Vijay Divas, to pay homage and commemorate the supreme sacrifice made by our bravest of all soldiers in the war. I don't intend to describe the war, as I said, but I must mention names of few heroes which you often hear, and when the pictures have been made on them. That is Captain Manoj Pandey, Paramveer Veer Chakra posthumously, Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra posthumously, Sipahi Yogendra Yadav, Paramveer Chakra, is still alive and very happy. Sometimes we like to produce him here. And after being hit, that time Sipahi Yogendra Yadav was hit by 19 bullets. Still he got up and killed 4 people, 4 casualties were there. And he captured the hill feature. Otherwise he would have gone Pakistan. See the bravery. At the end, I would like to say only one thing, that all our veterans are highly contented and happy because of the Bharatiya Janata Party's love and empathy for the armed forces and central government under the leadership of world's most popular leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has shown great concern and compassion towards the needs of the veterans as well as serving soldiers. Implementation of OROP is one of the few examples, and the modernization which is going on, you will see that it is tremendous. For more than 60 years, it was sweet but bitter dream. Veterans also feel proud when we read about the ongoing modernization, and recently the Rafale acquisition and other modern equipments, as we know, we have been seeing on TV, we have been reading newspaper, so I don't have to say further. Now, before I request our chief guest to give his address, well, I would like to give a brief introduction of the chief guest. With your permission, sir. Shri Jagat Prakash Nadda ji assumed the appointment of National President of Bharatiya Janata Party on 20th January 2020. Before that, he was working president with us from June 2019. His vast experience in the administration and political system. He is former Union Minister of Health and Family Welfare, Government of India, and also a member of Rajya Sabha from Himachal Pradesh. He is also the Parliamentary Board Secretary of the Bharatiya Janata Party. He was the first elected to Himachal Pradesh Legislative Assembly in 1993 and re-elected again in 1998. He was the Minister of Health and Family Welfare and Parliamentary Affairs in Himachal Pradesh during the second term. He was also the Cabinet Minister for Forest, Environment, Science, Technology for 2 years, that is 2008 to 2010. Well, he holds the degree in law. In younger days, he represented Bihar in All India Junior Swimming Championship held in Delhi. He has been associated with Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad for a very, very long time, more than probably 4 decades. He has charismatic personality, and everyone who meets him once becomes his fan and follower. May I now request Shri J.P. Nadda ji to give his address and do the margin for us. Thank you. आज के इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उपस्थित मंच पर लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे हेडक्वार्टर्स के इंचार्ज सम्मानीय अरुण सिंह जी, हमारे मेजर जनरल जो आज के कार्यक्रम के सूत्रधारक हैं, मेजर जनरल मुनींद्र श्रीवास्तव जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी.एल. संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुग जी, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी महेंद्र पांडे जी, और हमारे सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और हमारे सेना के सभी
संबंधित सज्जनों, आज हम सब लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ये शौर्य का दिवस हम सब लोग हर साल भारतीय जनता पार्टी स्थान स्थान पर मनाती है और केंद्रीय कार्यालय में भी इस कार्यक्रम को हम हमेशा मनाते हैं, जिसमें हमारे सर्विसमैन और हमारे पार्टी के साथ जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद यहाँ आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका आने पर हार्दिक अभिनंदन। ये एक विशेष परिस्थिति में इस बार हम मना रहे हैं, एक अलग परिस्थिति है, सबके मुंह पर मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है। एक अपने जब हम इस दृश्य को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कब कोरोना के साए से बाहर निकलेंगे, लेकिन फिर भी पार्टी और पार्टी से जुड़े हुए हमारे सभी एक सर्विसमैन का दृढ़ संकल्प रहता है कि परिस्थिति कोई भी हो, हमारी गतिविधि और हमारा शौर्य जो कारगिल दिवस विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, उसको हम जरूर मनाएंगे। और आज उसी संकल्प को दोहराते हुए हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जहाँ तक कारगिल विजय का सवाल है, लगभग 21 साल पहले हमारे वीर योद्धाओं ने कारगिल में अपना शौर्य दिखाकर विपरीत परिस्थितियों में भारत की बॉर्डर्स की रक्षा की थी और भारत के बॉर्डर्स के साथ साथ जो पाकिस्तान की कुनीति और कुनीति के विचार जो थे, जिसके माध्यम से उसने बहुत चुपके से कुछ क्षेत्रों में कब्जा करने का प्रयास किया था, उसको पछाड़ करके दो तरीके की विजय हासिल की थी। एक कि पाकिस्तानी ट्रुप्स को खदेड़ा था, उनको टाइगर हिल से लेकर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से उनको हरा करके उनको हटाया था, और उसके साथ साथ जो हमारे टेररिस्ट थे, जो इस गतिविधि में संलिप्त थे और जो इसको बढ़ावा दे रहे थे, उनको भी नष्ट नाबूद करने में हमारी फौज, जांबाज फौज, इसने बहुत बड़ा योगदान किया था। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि यह जो लड़ाई थी, इसमें इंस्पिरेशन, वैलर का एक यूनिक मिश्रण था। इंस्पिरेशन के साथ जिस विपरीत परिस्थिति में जब मेंटली आदमी हारा हुआ महसूस करता है, वहां से उठ करके वैलर के आधार पर विजय हासिल करना, यह बहुत बड़ी बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोग तो बड़े सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, यू नो बेटर देन मी, बट इट बिकम्स माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीइटरेट ऑन सच फोरम्स टाइम एंड अगेन दैट पाकिस्तान वॉज इन ए वेरी एडवांटेजियस पोजिशन। वो हाइट पर था और हाइट के साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर पोजीशन ले चुका था और लगभग 90 डिग्री की हाइट सीधे थी। इस 90 डिग्री की हाइट को चढ़ना कोई आसान खेल नहीं था, और आसान खेल क्या, उस बाउल में वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में हमारे जांबा फौज ने अपने स्ट्रेटेजिक के साथ साथ अपने वैलर के माध्यम से वहां विजय हासिल की, और शायद 26 दिन, 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स इस लड़ाई में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, ये दिस वाज द टफेस्ट बैटल ऑन द हाईएस्ट माउंटेन, अ रेंज ऑफ 14,000 फीट टू 16,000 फीट। इट वाज द टफेस्ट। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में लीजिए कि -10 डिग्री टेम्परेचर, -10 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने इस लड़ाई को जीत हासिल की। मैं ये महसूस करता हूं कि आने वाले समय में हमें, हमारी जनरेशन इस बात को याद रखेंगी कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी, इस देश की सिक्योरिटी किस तरीके से हमारी फौज ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने अपने जान को जोखिम में डाल करके किया है। भारत सदा उनको याद करता रहेगा, यह मैं बोलना चाहता हूं।
हम तो इसको हर साल मनाते ही हैं, लेकिन हाँ, हम इस बात को भी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब ये लड़ाई फौज बॉर्डर पर लड़ रही थी तो पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरनेशनल एरिना पर लड़ाई लड़ रही थी, और उसने भी बहुत सही और तगड़ा संदेश दिया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास गए, उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन करो, इसमें इसके बीच में बिचाव करो, बीच बिचाव होना चाहिए। और ऐसा नहीं था, उस समय बहुत से संदेश भी आए थे अटल जी को, बहुत से सिग्नल्स भी आए थे, बहुत सी बातचीत भी हुई थी, लेकिन अटल जी ने कहा था कि मैं पहले तो अमेरिका जाने की बात को उन्होंने इनकार किया था, लेकिन साथ में कहा था कि भारत कोई भी युद्ध में विराम नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान को हम पछाड़ करके अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर लेते हैं। इस बात को उन्होंने कहा। और आज मैं खुशी के साथ और गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी विचार को लेकर के आज दिन तक जीरो टॉलरेंस ऑफ इंट्रूजन, इसको मानते हुए आदरणीय मोदी जी ने भी इसको पूरा किया है और फौज के मोराल को बनाए रखा है हर दृष्टि से, हर कार्यक्रम के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि उनका लगाव फौज के प्रति और भारत की सुरक्षा के प्रति कितना है। उनकी हर दिवाली कहीं ना कहीं बॉर्डर पर मनती है, हमारे फौज के अफसरों के साथ, हमारे फौज के सोल्जर्स के साथ, उनके साथ मनती है, एक बार नहीं अनेकों बार। फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, फिर चाहे वो उत्तरांचल का बॉर्डर हो, फिर वो लेह लद्दाख का बॉर्डर हो, किसी न किसी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा दीपावली के अवसर पर दिखते हैं। यह संदेश है कि जो हमारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे होते हैं, दीपावली के उत्सव पर भी हमारे प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं, उनके साथ भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी भी हमने देखा कि ये जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है, इसमें प्रधानमंत्री जी खुद गए, उन्होंने सारा दिन लगाया, मीटिंग्स भी ली, हमारे फौजी भाइयों के साथ उनकी हौसला अफजाई भी की, और साथ ही साथ जो हमारे घायल सेनानी थे उनका भी हालचाल पूछते हुए, यानी भारत का प्रधानमंत्री यानी 130 करोड़ देश उनके नेतृत्व में फौज के साथ खड़ा है, इस बात का संदेश उसमें से जाता है। इसको हमको समझना है। मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक फौज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में इट इज ऑन द डिफेंस इज ऑन फोकस, और डिफेंस को उन्होंने हमेशा फोकस में रखा। आप देखिए 40 साल से OROP का विषय चल रहा था, सबने इसके साथ राजनीति की। एक हमारे वित्त मंत्री आए, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए टोकन मनी देकर के 500 करोड़ रुपए रख करके, और उन्होंने OROP की बातचीत शुरू की, और उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को 2014 में भरपूर समर्थन दिया, और हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि OROP को पूरा का पूरा मानने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और 30,000 करोड़ रुपए देकर के सारे एरियाज पूरे किए, कोई भी केस वापस नहीं रहा, इस तरीके की व्यवस्था की गई। आपको पता है, अब आज के दिन विजय कारगिल दिवस है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, एक हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हुए जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न वी आर लैगिंग बिहाइंड। हमारे यूपीए की सरकार के दौरान एंटोनी साहब ने कहा वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड यू सी डिफेंस इज नॉट अ सिचुएशन वेयर इन वन डे यू कैन डू एवरीथिंग, वी शुड नो द रियलिटी, और रियलिटी में हम पीछे हैं। और आपको मालूम है कि स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स होते चले गए, परचेजेस नहीं हुई, न पॉलिटिकल विल था और न ही कोई वो एक्यूमेन था कि उसको कर सके। लेकिन आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर्स आ गए, उनकी व्यवस्था हो गई, 28 अपैचे हेलीकॉप्टर्स आ गए, उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स आ गए, टेस्टिंग हो गई एंटी सैटेलाइट्स की, और इंडिजिनस बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में पैदा हो रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। यह आज
बदलती तस्वीर का नतीजा है। उसी तरीके से इन्हांस्ड हमारे मार्टियर्स के वार्ड्स को स्कॉलरशिप किया गया। यानी हर तरीके से चिंता की गई कि फौज को फोकस में रख करके जो हमारे प्रहरी हैं, जो हम यहाँ पर आज स्वाधीनता में अपनी सांस ले रहे हैं और आज़ादी से जीवन बसर कर रहे हैं, इसका कारण है कि हमारी फौज जहां कोस्टल बेल्ट को पूरा का पूरा रक्षा कर रही है, वहीं ऊपरी भाग को भी और सारे तरफ से इसकी रक्षा कर रही है, बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। तभी ये संभव हो पाया है। ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यूपीए के टाइम में लगभग 72 प्रोजेक्ट्स बॉर्डर के लिए गए थे और किसी पर काम नहीं हुआ था। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि ऑल 72 प्रोजेक्ट्स आर नियरली कंप्लीशन। ये हमारे कई लोगों को, विरोधियों को डर, मतलब दूसरे देशों को चिंता क्यों होती है? क्योंकि बॉर्डर रोड सारे कंप्लीट हो गए, सारे टनल्स बन गए, सारे ब्रिजेस बन गए। अब हम दिनों में, मतलब चंद घंटों में सारा का सारे सामग्री फौज की पहुंचा सकते हैं, यह व्यवस्था की गई है। ऑल प्रोजेक्ट्स हैव बीन कवर्ड। लगभग 2008 से लेकर 2014 के बीच में 3610 किलोमीटर की सड़कें बनी और 2014 से लेकर के 2020 तक 4764 रोड्स हैव बीन कंप्लीटेड, वेयर पूरी की पूरी आर्मी अपनी मशीनरी के साथ उस बॉर्डर के माध्यम से एकदम बॉर्डर पर पहुंच सकती है। यह व्यवस्था की गई है। तो यह प्रधानमंत्री जी की सोच है, जिसके कारण ये सब हो पाया है। और आज भारत की फौज, आप जानते ही हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन दी वर्ल्ड, इस तरीके का हम मानते हैं। आज शौर्य दिवस पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के प्रति समर्पित है। देश सबसे पहला है, टॉप ऑन द एजेंडा, नेशन फर्स्ट। और नेशन फर्स्ट को, अगर नेशन फर्स्ट रहना है तो नेशंस बॉर्डर फर्स्ट, और उस बॉर्डर की रक्षा आप सब लोगों ने किया है और आप सब कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। विजय दिवस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई इस तरीके से देता हूं कि हम लोग फिर से रीइंफोर्स होकर के, ताकत लेकर के अपनी जनता के बीच में इन बातों को रखें, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, उनके समझ में आए कि आज देश कितना मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में है और दुश्मन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। यह हमारा मनोबल है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग आज के दिन पर एकत्र आए, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।